کہ پی ٹی آئی کی اسلام آباد میں احتجاج کی کال، لاہور اسلام آباد موٹر وے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ رنگ روڈ بابو صابو انٹرچینج پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی۔ پولیس کی بھاری نفری، واٹر کینن اور قیدیوں کی وین بابو صابو انٹرچینج پر موجود ہے۔ لاہور سے اسلام آباد جانے والے مسافروں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں زین علی سے۔ زین، بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج اسلام آباد ڈی چوک میں احتجاج کی کال دی گئی ہے اور اسی احتجاج میں شریک ہونے کے لیے لاہور سمیت پاکستان بھر کے مختلف شہروں سے کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ لاہور پولیس کی جانب سے لاہور کے کارکنان کو روکنے کے لیے لاہور کے جتنے بھی خارجی راستے ہیں ان کو کنٹینر لگا کر مکمل طور پر بند کیا گیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں لاہور بابو صابو انٹرچینج پر، جہاں پر اگر میرا کیمرہ مین بلال اگر آپ کو دکھا سکے تو ایک بڑی تعداد میں جو کنٹینر ہیں وہ یہاں پہ رکھے گئے ہیں۔ ایک کنٹینر آگے کی جانب ہے، جبکہ اس کے پیچھے بھی دو کنٹینر جو ہے وہ لگائے گئے ہیں، جبکہ میرے بائیں جانب بھی جو ایک کنٹینر جو ہے وہ دو کھڑے کیے گئے ہیں، تاکہ جتنے بھی جو کارکنان ہیں لاہور سے اسلام آباد جانے والا جو راستہ ہے اس کو مکمل طور پر سیل کیا گیا اور بند کیا گیا ہے، جبکہ اسلام آباد اور دوسرے شہروں سے لاہور آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے ایک لین کی جو روڈ ہے وہ کھولی گئی ہے، جبکہ اسی طریقے کی صورتحال لاہور کے دوسرے خارجی راستوں پر بھی ہے، کہ جبکہ اب تک جو ہے وہ پولیس کی جانب سے کسی بھی کارکن کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا گیا، جبکہ کارکنان کی گرفتاری یا کسی بھی اگر کوئی جھڑپ ہوتی ہے تو اس سلسلے میں واٹر کینن اور پریزن وین بھی جو یہاں پر کھڑی کی گئی ہے اور کارکنان کو گرفتاری بھی جو کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی تک پولیس کی جانب سے کوئی بھی کارکن جو ہے یہاں پر گرفتار نہیں کیا گیا، جبکہ اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو ابھی بھی پی ٹی آئی کی کوئی بھی ریلی یا قافلہ جو ہے وہ ابھی تک اس طرف جو ہے وہ نہیں پہنچ سکا۔ جی شکریہ زین۔ بینائی سے محروم افراد کا احتجاج 12ویں روز بھی جاری۔ نابینا افراد کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے کلب چوک پر دھرنا، تحریری نوٹیفیکیشن کے بغیر دھرنا ختم کرنے سے انکار۔ اور اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فہد امین سے۔ فہد بتائیے۔ جی بالکل، بینائی سے محروم افراد کا دھرنا آج 12ویں روز میں داخل ہو چکا ہے اور نابینا افراد آج بھی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کلب چوک کے باہر جو ہے وہ موجود ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک انہیں نوٹیفیکیشن نہیں دیا جاتا اس وقت تک جو ہے یہ اپنا احتجاج ختم نہیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر نابینا افراد موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا۔ اچھا بتائیے گا، کن کن جو اعلیٰ آفیشلز ہیں یا حکومتی عہدیدار ہیں ان کی جانب سے آپ سے مذاکرات کیے گئے اور کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ کب تک یہ دھرنا جو ہے وہ ختم کریں گے آپ؟ پہلے جو 10 روزے ہیں اس میں تو ہمیں کسی سنجیدہ طور پہ ہمیں لیا ہی نہیں گیا اور آفیشلز جو ہیں وہ ڈی جی اور سیکرٹری سے اوپر کوئی گیا ہی نہیں۔ 2 دن قبل ہمیں وزیر جو سوشل ویلفیئر ہیں سہیل شوکت بٹ صاحب انہوں نے بلایا اور انہوں نے 4.5 گھنٹے طویل میٹنگ کی۔ انہوں نے تمام تر مطالبات ہمارے تسلیم کیے، لیکن وہ صرف زبانی کلامی، وہ ہمیں ریٹرن دینے سے مصر ہیں، کیونکہ یہ چیز ہمارے ساتھیوں کو تحفظات اس پہ ہیں، کیونکہ اپریل میں بھی انہوں نے 10 دن کا وعدہ کر کے ہمیں ٹالا تھا اور جولائی میں بھی انہوں نے ہمیں 14 دن کا وعدہ کر کے ٹالا تھا، اور اب یہ دوبارہ ہمیں 1 ماہ کا ٹائم دے کر ٹالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹھوس چیز دیں، ہمیں کوئی ریٹرن دیں، یا سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کل اگر ہمت کارڈ کا اجرا کر سکتی ہیں، اور اتنے بلند و باق دعوے وہاں پہ وہ کر رہی تھی کہ پنجاب میں کس کونے سے بھی کوئی نابینا فرد ہے، کوئی معذور ہے، کوئی خصوصی فرد ہے، وہ مجھے خط لکھے تو میں اس کا جواب دوں گی اور اس کا دکھوں کا مداوع کروں گی۔ تو یہ 500 خاندان اس وقت 12 روز سے مالوں کی ہاک چاٹ رہے ہیں اور یہ آپ کے گھر کے پاس موجود ہیں، یہاں پر آپ نہیں آ رہی، تو پنجاب کے طول و عرض بہت دور کی بات ہے۔ جی بالکل، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے قبل جو ہے وہ سیکٹری سوشل ویلفیئر اور ڈی جی سوشل ویلفیئر کی جانب سے بھی جو ہے وہ ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر انہوں نے جو ہے وہ مذاکرات نہیں کیے، اور 2 روز قبل جو ہے وہ وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ کی جانب سے بھی جو ہے وہ ان سے مذاکرات کیے گئے ہیں اور ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، مگر نابینا افراد جو ہیں وہ مضر ہیں۔ ان کا کہنا ہے بضد ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جب تک انہیں جو ہے وہ تحریری نوٹیفیکیشن نہیں دیا جاتا اس وقت تک یہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب حکومت کے ایک اور وعدے کی تکمیل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پاکستان کے پہلے سرکاری آٹزم اسکول کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ مریم نواز نے آٹزم اسکول کے ماڈل کا معائنہ کیا اور ماہرین کے مشاورت سے پروجیکٹ تیار کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی آٹزم اسکول کی تعمیر 1 سال میں مکمل کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ حسن بتائیے اس بارے۔
पंजाब में और वादे की तय करते हुए पहले सरकार ऑटिज्म स्कूल बुनियाद रख दिया है। मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर ऑटिज्म स्कूल की तामीर 1 साल में मुकम्मल कर दी जाएगी और ऑटिज्म जो है वो माहिरीन की फौरी हफ्ते का हुक्म दिया गया है और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को ऑटिज्म के माहिरीन की मुशावरत से प्रोजेक्ट तैयार करने का हुक्म दिया है और ऑटिज्म स्कूल के मॉडल का मुआयना किया और पहले ऑटिज्म स्कूल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई जिसमें बताया गया कि पहला ऑटिज्म स्कूल ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर मुश्तमिल होगा। जूनियर सेक्शन के लिए 11 क्लास रूम और सीनियर सेक्शन के लिए 10 क्लास रूम बनाए जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर पर जो है स्पीच सेशन 10 क्लास रूम में थेरेपी रूम, इसी तरह प्री वोकेशनल ट्रेनिंग रूम, डेली लिविंग एक्टिविटी रूम और कंप्यूटर रूम कायम किया जाएगा। ऑटिज्म स्कूल में मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल के लिए 2 मजीद फ्लोर बनाने की गुंजाइश होगी और ये भी ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान के पहले ऑटिज्म स्कूल में सिक्योरिटी वॉल, फायर अलार्म सिस्टम, टेलीफोन एक्सचेंज और हेड रिजर्व वार्ड जो है वो कायम किया जाएगा। मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान का पहला ऑटिज्म स्कूल का प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। ऑटिज्म से हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक है। हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। बहुत शुक्रिया हसन बताने के लिए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जदीद आलात खरीदने का फैसला। सूबे के 9 कमिश्नर 36 डिप्टी कमिश्नर्स को कार्रवाइयाँ तेज़ करने और आलात खरीदने के लिए मरासला जारी। टीमों के पास धुआं का अखराज चेक करने के लिए आलात मौजूद नहीं। लाहौर में 40 करोड़ रुपए की लागत से आलात खरीदे जाएंगे। और इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिए। देखिए, वजह सामने आई है जिसमें जो है पंजाब में धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों स्मोक की बड़ी वजह करार दे दी गई है। पंजाब भर की जो टीमें हैं वो सिर्फ धुआं से अखराज होने वाली गैसों का अंदाजा लगाकर कार्रवाइयां अमल में लाती हैं। दस्तावेजात में ये बता दिया गया है कि आलात भी नहीं है, पैमाना भी नहीं है और इस वाले से नए आलात फौरी तौर पर प्रोक्योर करने के हवाले से फैसला किया गया है। सूबे के 9 डिवीजनल कमिश्नर और 36 डिप्टी कमिश्नर को कार्रवाइयां तेज और आलात खरीदने का मुरासला जारी कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर डिवीजन को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए जदीद आलात की खरीदारी का फैसला किया गया है। 40 करोड़ की मद में जो है 80 पोर्टेबल ऑटोमोबाइल एमिशन एनालाइजर खरीदे जाएंगे। दस्तावेजात के मुताबिक टीमों के पास धुएं का अखराज चेक करने के लिए आलात मौजूद नहीं। टीमें सिर्फ नजर आने वाले धुएं से खतरनाक गैसों का अखराज का अंदाजा लगाकर कार्रवाइयां करती हैं। दस्तावेजात में ये भी बताया जा रहा है कि जदीद आलात की खरीदारी गाड़ियों से निकलने वाले और नजर न आने वाली गैसेज की निशानदेही भी कर सकेंगी। नजर न आने वाले खतरनाक गैसेज के अखराज पर भी गाड़ियों को भारी जुर्माने किए जाएंगे। महकमा फाइनेंस ने जदीद आलात की खरीदारी के लिए फंड्स फराहम करने की मंजूरी दे दी है। जी, आपका शुक्रिया इमरान। हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतलिक दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर में 5 सड़कों की तामीर में दरख्तों की कटाई का खदशा है। चीफ इंजीनियर LDA को तलब कर लिया गया है और समाअत 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। आपको अपडेट करते चलें कि हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतलिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है जिसमें लाहौर में 5 सड़कों की तामीर में दरख्तों की कटाई का खदशा जाहिर किया गया है। चीफ इंजीनियर LDA को तलब कर लिया गया है और समाअत आज 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। समाअत को मुलतवी कर दिया गया है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। लाहौर में 5 सड़कों की तामीर में दरख्तों की कटाई का खदशा है। चीफ इंजीनियर LDA तलब समाअत 12:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। आलूदगी की शरह 160 से तजावुज़ कर गई। और इसी पर मज़ीद अहवाल बता रही हैं सामिया सईद। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सुबह सवेरे से ही सूरज अपनी पूरी आबो ताप के साथ चमक रहा है। आज गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस की जा रही है और महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज दिन भर शहर लाहौर का मौसम जो है वो गर्म ही रिकॉर्ड किया जाएगा। अलबत्ता अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम दर्जा हरारत 24 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार भी 8 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। दूसरी जानिब शहर लाहौर में बारिश बरसने के जो हैं वो कोई भी इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए जा रहे हैं। अलबत्ता अगर बात की जाए फ़िज़ाई आलूदगी के
तो आलूदगी के एतबार से लाहौर सुबह सवेरे से ही दुनिया में पहले नंबर पर विराजमान है, जबकि शहर में स्मोक की औसत शरह 160 से भी तजावज़ कर गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि बर वक्त फ़िज़ाई आलूदगी को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। अलबत्ता धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ चलान भी काटे जा रहे हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि इस बार हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए मसनूई बारिश भी करवाई जाएगी। आपका शुक्रिया साम्या। स्मोक की शिद्दत में कमी के लिए हुकूमती कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई है। सूरत हाल में बेहतरी के लिए हुकूमती इदारों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के रोड मैप पर अमल जारी है। 6 माह में 4403 सनती यूनिट्स को नोटिस जारी किए गए। आलूदगी फैलाने पर 117 यूनिट्स को मिसमार किया गया। स्मोग ने कई सालों से अक्टूबर से फरवरी तक शहरियों का जीना हराम कर रखा है। रवां साल इस सूरत हाल से बचने के लिए हुकूमत पंजाब ने अप्रैल में ही एंटी स्मोक प्लान पर काम शुरू कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर हुकूमत पंजाब ने अप्रैल से सितंबर तक इंसदाद स्मोक के लिए मुतअद्दिद इक़दामात उठाए। ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, माहौल, सनत, तवानाई, तालीम और सेहत के शोबों पर फोकस किया गया। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल से सितंबर तक 6 माह में 12,540 सनती यूनिट्स को चेक किया गया। 4,403 को नोटिस जारी किए गए, 117 यूनिट्स मिसमार कर दिए गए, 594 सरबमोहर और 361 के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। 7 करोड़ रुपए के जुर्माने अलग से किए गए। 75,881 व्हीकल्स की चेकिंग के दौरान 18,069 गाड़ियों के चालान किए गए और 24 के रूट्स मनसूख कर दिए गए। धुआं छोड़ने वाली 13,678 गाड़ियों को बंद किया गया और 32 मिलियन रुपए के जुर्माने किए गए। 6 माह में 8,810 तामीराती साइट्स को चेक किया गया, 26 को सरबमोहर और 376 को नोटिस दिए गए। इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 38,528 भट्टों का विजिट हुआ, 9,617 को नोटिस जारी हुए और 240 को मिसमार किया गया। 1,012 भट्टे सरबमोहर और 217 के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि 89 मिलियन रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। इसी तरह एंटी प्लास्टिक मुहिम में 59,389 मुआयने हुए। माहौलियाती मैजिस्ट्रेट्स के पास 191 शिकायत दर्ज हुई, 19 लाख रुपए जुर्माना किया गया। शजरकारी मुहिम के दौरान पंजाब में 3 करोड़ 60 लाख जबकि सिर्फ लाहौर में 48 लाख पौधे लगाए गए। फसलों की बाकियात चलाने पर काबू पाने के लिए दही इलाकों में खुसूसी कमेटियां बनाई गईं। ट्रांसपोर्ट के ज़िम्मन में पंजाब भर में ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। पंजाब भर में 5,000 बर की बसें मुतारिफ होंगी। पहले मरहले में 1,000 बसें चलेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 24 ई बसों की मंजूरी दे दी है, जबकि तलबा तालिबात के लिए ई बाइक स्कीम भी कामयाबी के साथ जारी है। शहर के मुख्तलिफ इंटरसेक्शंस पर आलूदगी की शरह जांचने के लिए आलात नस्ब होंगे। सेफ सिटी कैमरे धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की निशानदेही करेंगे। माहौल की मॉनिटरिंग के लिए 3 माह के लिए 2,000 इंटर्नीज रखे जाएंगे। प्लास्टिक पर पाबंदी के लिए लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में एंटी स्मोक स्क्वाड मुकर्रर। स्क्वाड्स सनतों से जहरीली गैसों का इखराज मॉनिटर करेंगे। सनतों की ड्रोन की मदद से भी चेकिंग जारी रखी जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में वेस्ट मैनेजमेंट का भी जामे प्लान बनाया गया है। लाहौर में कार्बन पैदा करने वाले 5 हॉट स्पॉट्स को चुना गया है। बादामी बाग, महमूद बूटी, लखोडैर, द्रोगावाला और कायदे आजम इंडस्ट्रियल स्टेट्स इनमें शामिल हैं। इन इलाकों से सनतों की मुंतकिली के लिए अलग जमीन और फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में शमसी तवानाई पर वज़ीर आला ने खुसूसी तवज्जो दी। रोशन घराना प्रोग्राम के तहत 50,000 घरों को सोलर पैनल्स दिए जा रहे हैं। 36 DHQ हॉस्पिटल्स, ट्यूबवेल, वासा पब्लिक सर्विस इमारत भी सोलर पर जाएंगी। एजुकेशन सेक्टर में पंजाब ग्रीन स्कूल प्रोग्राम मुतारफ कराया जा रहा है। प्रोग्राम में साफ माहौल से आगाही और शजरकारी मुहिम भी शामिल है। स्मोक के अय्याम में स्कूलों के औकात कार में तब्दीली भी होगी। स्मोक से मुतासर अफराद के इलाज मुआलजे के लिए हेल्थ सेक्टर को भी फोकस किया गया है। लोगों के साथ साथ हेल्थ केयर स्टाफ को इस बाबत ट्रेनिंग दी जाएगी। इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए 50,000 वैक्सीन तैयार रखना भी प्रोग्राम का हिस्सा है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है शहर में स्मोक की शरह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। स्मोक फैलाने वाली गाड़ियों पर 0 टॉलरेंस है। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में शहर को स्मोक से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएंगे।